अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। इंडिया और चीन का इख्तलाफात हल करने और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने सरहदात पर क़याम अमन के लिए काम करने पर दिया जोर। इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी एतराज़, करारदाद पास। बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए फसाद करवाती है, अखिलेश यादव का इल्ज़ाम। बहराइच फसादात में नए इंकशाफात को हैरानकुन करार दिया। कांग्रेस यूपी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी तर्जुमान का बयान, कहा बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देना है मकसद। और समुद्री तूफ़ान दाना की शिद्दत में इजाफा, रात देर गए उड़ीसा के साहिल से टकराने का इम्कान। तो ये थे सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने सहाफ़ियों को हिंद चीन रहनुमाओं की अहम मीटिंग के बारे में बताया और वज़ारत ख़ारजा ने एक मुख्तसर मुश्तरका बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों लीडरों ने इस बात का इआदा किया है कि दो हमसाय ममालिक और दुनिया की दो सबसे बड़ी कौमों के तौर पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुस्तहकम और खुशगवार बाहमी ताल्लुकात का इलाक़ाई और आलमी अमन खुशहाली पर मुस्बित असर पड़ेगा। Opportunity to brief you on the Prime Minister's main bilateral engagement today on the sidelines of the 16th BRICS Summit. My colleague, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs, Mr. Damur Ravi, who is also our Sherpa for BRICS, will make some comments with regard to the BRICS engagements. But let me say a few words about the Prime Minister's meeting with His Excellency President Xi Jinping, the President of the People's Republic of China. We have also put out a press release which should be available very shortly on the website of the Ministry of External Affairs if it is not there already. So as you all know, earlier today, in fact just a short while ago, Prime Minister Modi met with President Xi Jinping on the sidelines of the 16th BRICS Summit. This was their first proper bilateral meeting at delegation level in nearly 5 years, the last one being on the sidelines of the BRICS Summit in Brasilia in 2019. So let me just flag some points made by the two leaders during their meeting. This meeting happened, as you are all aware, close on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब किया है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के इस मौक़िफ़ का इआदा करते हुए तनाज़ात के मौसर हल की ज़रूरत पर जोर दिया है कि जंग आज के दौर में हल नहीं है, इसके बजाय तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। मुआहदों का एहतराम किया जाना चाहिए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बग़ैर किसी रियायत के अमल किया जाना चाहिए। जयशंकर ने दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की अहमियत पर भी जोर दिया। The BRICS itself
is a statement of how profoundly the old order is changing. At the same time, many iniquities of the past also continue. In fact, they have assumed new forms and manifestations. We see that in the access to developmental resources and modern technology and efficiencies. Let us also recognize that the benefits of globalization have been very uneven. Adding to all that, the COVID pandemic and multiple conflicts have aggravated the burdens borne by the global south. Concerns of health, food, and fuel security are particularly acute. The Summit of the Future underlined that the world is in real danger of falling significantly behind in realizing SDG targets. How do we reconcile this contradiction and ensure that the benefits of change reach those who are currently left behind? How do we create a more equitable global order? First, by strengthening and expanding platforms of an independent nature, and by widening the choices in different domains and minimizing undue reliance on those that can be leveraged. This is really where BRICS can make a difference for the global south. Second, by reforming established institutions and mechanisms, especially the UN Security Council in the permanent and the non-permanent categories. So too, the multilateral development banks, whose working procedures are just as outdated as that of the UN. India initiated an effort during its G20 presidency, and we are glad to see that Brazil is taking it forward. Third, by democratizing the global economy through creating more production hubs. The COVID experience is a sharp reminder of the need for more resilient, redundant, and shorter supply chains. For essential needs, every region legitimately aspires to create their own production capabilities. उधर सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में जब से नई इंसाफ की देवी यानी बगैर आंखों की पट्टी वाली मूर्ति रखी गई है, तनाज़ा शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की हिदायत पर दहाइयों पुरानी इंसाफ की देवी में कुछ अहम तब्दीलियाँ की गई थीं, जिस पर कई शख्सियात ने एतराज़ जाहिर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस मामले में अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। बार एसोसिएशन ने एक खरारदाद पास करके कहा है कि इंसाफ की देवी में जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं, इससे मुतालिक हमारे कारकुनान से किसी भी तरह का मशवरा नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए फसाद करवा रही है। यादव ने जारी बयान में कहा कि बहराए तशद्दुद के मामले में हर दिन नए इंकशाफात हो रहे हैं, जिनसे बीजेपी मुँह दिखाने के लायक नहीं रही है। बीजेपी के MLA ही बीजेपी पर साजिश करने की FIA दर्ज करा रहे हैं और फसाद के बारे में कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश करके रियासत का माहौल ख़राब कर रही है। इक़्तिदार के गुरूर और तहफ़्फ़ुज़ में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियतों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। बीजेपी हुकूमत में न किसी की जान महफूज है और न किसी का कारोबार महफूज है। सब कुछ गैर महफूज हो चुका है। अपने सियासी फ़ायदे के लिए नौजवानों को वरगला कर बीजेपी अपने कारकुनान से फसाद, तशद्दुद और मुजरिमाना काम करा रही है। उधर प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने अमली सियासत में प्रियंका के दाखिला पर मुस्तरद का इजहार किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रियंका के मुल्क के तय जज्बात और पार्टी के लिए की जाने वाली खिदमत की सताइश की है। उन्होंने कहा कि प्रियंका की कामयाबी दरअसल अवामी कामयाबी होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि अब प्रियंका कदम वो ले रही हैं कि अपने लिए सोच रही हैं, अपने मेहनत करेंगी, अपना प्रचार करेंगी खुद अपने लिए, क्योंकि जब से मैं प्रियंका को जानता हूँ 35 साल हो गए मेरे ख्याल से, और मैंने देखा है वो हमेशा अलग लोगों के लिए, सारे अपने परिवार के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की है और कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पर मैं खुश हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा है कि उनको वायनाड से लड़ना चाहिए। और जब मैं वहाँ शामिल था कल और इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा खुशी थी लोगों में, इतना उत्साह था कि हम अपने नामकरण के लिए पहुँच ही नहीं पाए।
पर लास्ट में मतलब कि जैसे भी ये टाइम से पहुँचे, पर वो भी जल्दबाजी किया थोड़ा, पर पहुँच गए समय से। और पर बहुत खुशी थी लोगों में, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका ने ये सोचा है, अपना कदम लिया है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए, संसद में आने के लिए। और मुझे ये लगता है कि अगर राजीव जी जीवित होते वो ज़रूर बहुत खुश होते कि प्रियंका जिन्होंने अपने पिताजी से, अपनी दादी से, माताजी से बहुत सीखा, और अब वो सक्रिय राजनीति में और संसद में एक सांसद के रूप में देखेंगे। देखिए, मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद में आए और वो खाली प्रचार में ध्यान ना दे, या हमेशा वो लोगों के बीच में रहती है। पर मुझे ज़रूर लगा था कि अगर वो संसद में होंगे तो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगी, और जो भी असल मुद्दे हैं जो बीजेपी नहीं उठाती है, जो छुपाते हैं, वो उनको बुलंद करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा कि प्रियंका भी जुड़ेंगी उनके साथ संसद में। और बात मेरी रही तो मैं अभी तो लोगों के बीच में हूँ, ग्राउंड पे हूँ, मैं सेवा करता हूँ हमेशा अपने चैरिटी के द्वारा, अपने धार्मिक जो दौरा होता है पूरे देश में मैं करता हूँ, और लोगों के बीच में रहता हूँ। और अगर कभी भी लोगों को लगेगा कि मुझे भी अपने सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और संसद में होना चाहिए, तो मैं वो कदम लूँगा। पर अभी मैं खुश हूँ कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके जो मुद्दे होते हैं मैं समझता हूँ, और अपने परिवार को भी बताता हूँ कि ये असल मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं, और ज़रूर लोगों की बात रखता हूँ मैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया है, और वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इंडिया इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। कांग्रेस से उत्तर प्रदेश उबूर के इंचार्ज अविनाश पांडे और राष्ट्रीय कांग्रेस के सदर अजय राय ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में किसी भी सीट पर उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति प्रशासन के अनदेखी का बहाना बनाकर जो तनाव बढ़ रहा है, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, इन सभी विषयों को लेकर उनसे हमने चर्चा की। पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है, और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का। उधर खलीज बंगाल के मशरक़ी वस्ती इलाके में तैयार होने वाला समुद्री तूफ़ान दाना एक शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक इसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है और उसकी शिदत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफ़ान के आज रात देर गए या 25 अक्टूबर की सुबह को उड़ीसा के साहिलों से टकराने का इम्कान है। देखिए, जो मेन इम्पैक्ट स्टेट्स हैं वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैं। जो लैंडफॉल का एरिया है वो पुरी और सागर आइलैंड्स वेस्ट बंगाल के बीच में ये एरिया में लैंडफॉल होगा। ख़ास तौर पर जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बताया जा रहा है। इसको देखते हुए उड़ीसा में ख़ास तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें पुरी है, गंजाम है,
जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, वो अफेक्टेड होंगे। अभी फ़िलहाल जो सूचना हमारे पास है उसमें क्लाउडी कंडीशंस है, वहाँ पर लाइट और मॉडरेट रेन्स हो रहे हैं। अभी जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है, तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा ऑडरेफ जो है स्टेट फोर्स वो लगी है, 51 टीमें उनकी हैं, उनकी स्मॉल टीम्स होती हैं, 10-10 लोगों की टीमें होती हैं। इसके अलावा जो फायर सर्विसेज हैं उड़ीसा के, उनकी भी 220 टीमें लगी हैं, जो स्मॉल टीम्स होती हैं। तो ये बड़े पैमाने पर काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए। लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गई है, तो लगभग इससे कितना डैमेज होने का खतरा रहता है? बिल्कुल, देखिए 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है और अगर इसमें अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खास तौर पर यह इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहने चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर। ये हमारी हिदायत है सब लोगों को और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जब किया जाता है तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है खास तौर पर, और ये इंश्योर भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एनडीआरएफ के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में होने वाली बुलडोज़र कार्रवाइयों के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। ये दरख्वास्त नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन नामी तंजीम ने दायर की थी। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस कार्रवाई का ताल्लुक फुटपाथ पर किए गए नाजायज़ कब्ज़े से था और दरख्वास्त गुजार एनजीओ का इस मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि ये महज अखबारी ख़बरों की बुनियाद पर दायर की गई दरख्वास्त है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इंडिया और चीन का इख्तलाफात हल करने और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने सरहदात पर क़याम अमन के लिए काम करने पर दिया जोर। इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी एतराज़, करारदाद पास। बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए फसाद करवाती है, अखिलेश यादव का इल्ज़ाम। बहराइच फसादात में नए इंकशाफात को हैरानकुन करार दिया। कांग्रेस यूपी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी तर्जुमान का बयान, कहा बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देना है मकसद। और समुद्री तूफान दाना की शिद्दत में इजाफा, रात देर गए उड़ीसा के साहिल से टकराने का इम्कान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।